Hi everyone, welcome to MB Pathshala. This is Vijay. This is the third part in the decision making series, right? So we are discussing some important concepts. We are discussing the different types of decision making problems. So in this particular part, we'll be discussing some again businesses and HR based sets, right? So we'll be introducing HR based problems in this particular video, right? Let's begin. So uh, whosoever is actually watching this video for the first time, we have already started with a ZAR24 booster course, right? This is entirely free, and we started on the 1st of December, right? And the following sessions have already been done. So if you haven't really checked them out, please go and move with the first video onwards, right? And we are planning to cover all the concepts, all the major concepts with respect to all the four sections, right? All the four sections including DM, right? That is the fourth section. So we are doing separate sessions for DI, right? So please check this out, and whoever is actually preparing for CAT 24, this becomes relevant. So we have Eklavya batch, and please check this out. And whoever is looking to enroll for CAT 24 can ping us also. You can also go ahead and join the Telegram group, right? That link is in the description. Now let's start with the फर्स्ट सेट फॉर टुडे. सो लास्ट वाले वीडियो में एक LSP वाला सेट हमने इंट्रोड्यूस किया था. दैट सेट वाज स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स. सो only a question of that particular set was included in that video. Now यहाँ पे हम businesses and HR based problems को deal कर रहे हैं. So we'll start reading that LSP वाला part again, and we'll be taking around 2 sets in this particular video. Let's try to understand how options are eliminated. Suppose we end up at a juncture where we have to decide ethically or morally. We will also take care of this in this particular part. So let's start reading this first set. This is a very interesting set. Let's just first read then and then decide whether this question should have been attempted or not, and how it should have been attempted, right? So having said that, let's kick off with the first set. So Life Saving Pharmaceuticals LSP is India based pharmaceuticals company. Their businesses mostly revolves around a couple of generic drugs and a few patented drugs, right? So दो type के medicines they basically are involved with: generic drugs and patented drugs, right? LSP operates in 30 odd countries and more than 50% of the sales volume is from outside India. ठीक है, तो currently ये हमारे पास situation है. It is not really difficult to understand. Now we have been given a situation. This situation is very important. Mr. Sinha, a senior executive of this LSP, observes that the business in India is not vibrant, right? So it is not really flourishing. LSP faces stiff competition from Indian and global player except in rural areas. So this except वाला part becomes very important. So LSP क्या कर रहा है? इंडिया पे जो उनके ऑपरेशंस है ना, बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं चल रहा है. इट इज़ नॉट वाइब्रेंट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह नहीं है. एंड क्यों नहीं है? बेसिकली LSP इज फेसिंग स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंडियन एंड ग्लोबल प्लेयर्स. सो इनको कॉम्पिटिशन मिल रहा है except in rural areas, which actually means कि rural areas में LSP का ना है power है, right? They have a good market share in the rural areas. That is what it is given in this. Interestingly, most of their sales in the rural areas are from cough syrup used as sedatives by teenagers. अब यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दिखेगा, राइट? सो बेसिकली रूरल एरियाज में इनका स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है, इनका थोड़ा मार्केट शेयर अच्छा है, राइट? दे आर नॉट फेसिंग एनी बिग कॉम्पिटिशन इन रूरल एरियाज. इंटरेस्टिंगली, मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द रूरल एरियाज आर फ्रॉम कफ सिरप. नाउ कफ सिरप्स आर एक्चुअली बीइंग यूज्ड एज सेडेटिव्स बाय टीनेजर. उसको नेगेटिव तरीके से यूज कर रहे हैं एज इंटॉक्सिकेंट्स एंड सेडेटिव्स, राइट? टीनेजर्स यूज कर रहे हैं. Now, Mr. Sinha is planning the following actions to improve the business in the long run. Now, यहाँ पे आके ना अपने को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा. तो बेसिकली मिस्टर सिन्हा इज trying to do what? He's trying to improve the business in the long term. Whenever we talk about long term improvements, तो हम ना शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा फोकस ना करके ऐसे स्टेप्स ज़्यादा हम फोकस करेंगे, ऐसे स्टेप्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे विच गिव मी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ दिस. सो मे बी जैसे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इवन इफ आई डोंट रीड दी ऑप्शंस फर्स्ट, इस सिचुएशन में अगर मैं होता, फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी मल्टीपल सॉल्यूशंस टू दिस टू इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म बिजनेस. तो बट एक
ऐसा होता कि मैं कुछ ऐसा काम करता जिससे मेरा जो कंपटीशन है ना उसको मैं थोड़ा सा लाइक उसी कंपटीशन में रहते हुए मैं उनसे compete कर पाता. तो मे बी इफ दे आर प्रोड्यूसिंग लेट्स से different types of drugs which I am not actually producing maybe, तो मैं उनके मार्केट में पेनिट्रेट करने की कोशिश करता, मैं अपना पोर्टफोलियो बढ़ाता मेडिसिन का. तो दीज आर गुड लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस. तो मैं लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस पे इस तरीके से फोकस करूंगा. ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्शंस में ना कुछ सोल्यूशंस दिए होंगे. सम ऑप्शंस विल हैव शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, मे बी इंस्टेंट बेनिफिट दे सकता है. सम ऑप्शंस विल हैव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. तो हमारा ज्यादा इंक्लिनेशन किसकी तरफ होना चाहिए? जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देंगे. राइट नाउ इतना पढ़ के अपने को थोड़ा बहुत समझ में आया. राइट, एंड इसको रीड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. यही मैं हमेशा आपको डीएम में बोलता हूँ, रीडेबिलिटी में बहुत ज्यादा इशू नहीं आएगा आपको. आप जब तक इसको डिसाइड नहीं कर पाओगे, जब तक आप पूरा प्रॉब्लम एंड उसके साथ सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ लेते हो, उस लास्ट स्टेप से पहले आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि करना है या फिर नहीं करना है. सो इनिशियल पार्ट तो ठीक है, अपने को क्लियर हुआ. Now he is planning the following actions to improve the business in the long term. अच्छा, before I read the options, पहले ये देख लेता हूँ कि मेरे को करना क्या है. So which of the following sequences में वही obviously steps है. Which of the following sequences is best arranged in the descending order of appropriateness. तो इसमें जो जो initial मेरा स्टेक होल्डर है, वो स्टेक होल्डर यहाँ पे ना क्या है? बिजनेस है, मिस्टर सिन्हा एंड द बिजनेस. वो लॉन्ग टर्म मेरे को बेनिफिट चाहिए इन डिसीजन से. ऑल्सो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एप्रोप्रिएटनेस चाहिए. मतलब इसका क्या हुआ कि जो भी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें जो फर्स्ट वाला नंबर होगा वो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा. देन फॉलोड बाय द लोअर एप्रोप्रिएट ऑप्शन, देन फॉलोड बाय द लीस्ट एप्रोप्रिएट. सो ज्यादा एप्रोप्रिएट से कम एप्रोप्रिएट तक अपने को प्रोसीड करना है. नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस एंड सी व्हाट दीज ऑप्शंस have what are the implication of these options. So the first statement, the first steps, right? Invest in the development of new drugs. Now इस statement को अगर आप पढ़ते हो ना, invest in the development of new drugs, इसको पढ़ते ही मेरे को समझ में आता है भाई this is one of the best possible solutions to improve the business in the long run, right? इसके long term benefits हमारे होने वाले हैं. Investment in the development of new drugs, this has what? Long term benefits. Long term and it's definitely positive. So it has a positive note to that and this should be there in my options also. ठीक है, तो ये options में रखने वाला हूँ. तो इसी के साथ जैसे obviously आप पेपर जब सॉल्व करोगे तो आप options भी देख ही रहोगे. तो फॉर एग्जाम्पल if I see फर्स्ट वाला मेरा डेफिनेटली होना चाहिए, राइट? इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता. फर्स्ट वाला जिस ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी माई करेक्ट आंसर. मे बी थोड़ी देर बाद हम टिक कर सकते हैं, इसको क्रॉस आउट कर सकते हैं, सॉरी, बट येस दिस इज नॉट गोइंग टू बी माई आंसर बिकॉज द फर्स्ट ऑप्शन लुक्स वेरी गुड. बट पहले काम करते हैं, सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. सेकेंड ऑप्शन, इंक्रीज सेल्स ऑफ कफ सिरप इन द रूरल मार्केट. नाउ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ना, इफ यू थिंक वेरी क्लोजली, अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों का डिफरेंट टाइप का पर्सपेक्टिव हो सकता है. आई गिव यू माई पर्सपेक्टिव ऑल्सो. इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम क्या थोड़ा लॉजिक रख सकते हैं. बट मैं क्या कह रहा हूँ ना, इस स्टेटमेंट को मोस्ट ऑफ यू जैसे ही आपने पढ़ा होगा ना, आपको इसको नेगेटिव आपने इसको नेगेटिव सेंस में ही बहुत ज़्यादा देखा होगा. बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम इस तरीके से स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि भाई उनका रूरल एरियाज में काफ़ी ठीक चल रहा है, कोई कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, उनका स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है, इंटरेस्टिंगली उनकी सेल्स किस में है? कफ सिरप में है. एंड कफ सिरप कहाँ पे यूज हो रहा है? सेडेटिव्स की तरीके से टीनेजर यूज कर रहे हैं. तो कहीं ना जब ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ा या आपने पढ़ा होगा, लेट मी नो, आप कमेंट्स में बताना मेरे को आपने क्या सोचा था. इंक्रीज सेल्स ऑफ कफ सिरप्स इन द रूरल मार्केट, इसका फर्स्ट जो ऐसा कॉन्सेप्ट निकल के आता है या मेरे को दिमाग में आता है ना, वो ऐसा आता है कि भाई ये तो नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है. आप सोसाइटी में बहुत कुछ गलत कर रहे हो, आप अनएथिकल काम कर रहे हो, राइट? इस स्टेटमेंट को पढ़ के सबसे पहले ये चीज आता है कि आप कुछ अनएथिकल कर रहे हो. सी, यहां पे ना आपको समझना पड़ेगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनएथिकल एंड इमोरल. मोरालिटी और एथिक्स पे हम एक पर्टिकुलर वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छा डिस्कशन हो सकता है, राइट? वी शुड नो दिस फॉर अ लाइफ एज वेल. मोरालिटी और अनएथिकल में काफी डिफरेंस है. देखो, मोरालिटी बेसिकली क्या होता है, आई
आई एम लाइक बॉर्न इन अ सर्टेन सोसाइटी, मैं अपने कल्चर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ, मैं कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में सीखा, मेरी फैमिलीज या जिस सोसाइटी से मैं निकल के आया वहाँ पे देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट वेरी स्टैंडर्ड, जिसको लोग मे बी गलत तरीके से देखते हैं। मे बी लिव इन में रहना फॉर एग्जाम्पल, अब लिव इन में रहना मे बी मेरे लिए ओके है या लाइक नॉट ओके, लेट्स से मेरे लिए ओके फॉर एग्जाम्पल कि देर इज नो नथिंग वेरी रॉन्ग अबाउट इट, बट देन देर कैन बी अनदर पर्सन जिसका अपब्रिंगिंग ऐसा हुआ जो बोले कि भाई दिस इज वेरी रॉन्ग, सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट डालता है, राइट? दिस इज मोरालिटी। तो द सेम थिंग कैन बी मोरल फॉर मी, इट कैन बी इमोरल फॉर द अदर पर्सन, राइट? मोरालिटी थोड़ा सब्जेक्टिव है, ठीक है, वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग तरीके से डील करी जा सकती है। वेर एज अनएथिकल चीज या अनएथिकल का होता क्या मतलब होता है, अनएथिकल ना कम्युनिटीज के लिए या बिजनेसेस के लिए एक स्टैंडर्ड की तरह काम करता है। हम जैसे कोई बिजनेस है, अब बिजनेस बोलता है कि ये पार्ट अनएथिकल है, तो अनएथिकल का मीनिंग का लाइक कोई डिफरेंट टाइप का इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता उनके लिए। अगर अनएथिकल कोई चीज अगर वो मानते हैं तो फिर वो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, उसी के अराउंड हर चीज रिवॉल्व करेगी, जो भी डिसीजंस है उसको अनएथिकल मांग के ही लाइक एक्स्ट्रापोलेट वगैरह या फिर डिसीजन लिए जाते हैं, राइट? सो अनएथिकल में बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी नहीं है, इट हैज़ अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स जिसके अराउंड हम चीज़ें अनएथिकल है, वो सबके लिए अनएथिकल है, बट मोरालिटी में काफ़ी डिफरेंट है। अब यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको लग सकता है कि इट इज़ वेरी लाइक अनएथिकल कि इंक्रीज सेल ऑफ कफ सिरप इन द रूरल मार्केट, बट ये पॉइंट क्या है पता है इसमें ना, अगर आप इस लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखो, एंड ऑल्सो अब ये ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे सिर्फ मोरल या लाइक एथिकल सिर्फ ये नहीं होना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और आपके प्रॉब्लम में आपका मेन स्टेक होल्डर क्या था? मिस्टर सिन्हा इज प्लानिंग द फॉलोइंग एक्शंस टू इंप्रूव द बिजनेस इन द लॉन्ग रन। नाउ बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट से मेरे को ऑप्शन को इवेल्युएट करना है। सो माई 2 cents इन दिस पर्टिकुलर केस इज, a lot of people could have different interpretation to this. My 2 cents with respect to the case given and to this option is that अगर मैं सेल्स फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो अगर सेल्स नहीं बढ़ाता हूँ या सेल्स फॉर एग्जाम्पल मैं रोक देता हूँ, क्योंकि आप तो चाहोगे ना मैं सेल्स रोक दूँ, वही अनएथिकल चीज कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है ना कि रूरल मार्केट में मेरा पेनिट्रेशन तो है ही विद रिस्पेक्ट टू कफ सिरप। येस आई कंप्लीटली अग्री कि दीज कफ सिरप्स आर बीइंग यूज्ड बाय टीनेजर्स एज सेडेटिव्स, बट द पॉइंट इज ऐसा भी तो हो सकता है लाइक ये कफ सिरप उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जो उसको एक्चुअली में कफ सिरप की तरह यूज कर रहे हो। सो मैं जस्ट बिकॉज अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल, अ सर्टेन सेट ऑफ टीनेजर्स इज यूजिंग दोज कफ सिरप्स एज सेडेटिव्स, राइट, जस्ट बिकॉज दे आर यूजिंग दैट, मैं इस पूरे प्रोडक्शन को कम या बंद नहीं कर सकता। मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता कि नहीं कफ सिरप मैं बेचूंगा ही नहीं, राइट? बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि उस मार्केट में मेरा पेनिट्रेशन जो कफ सिरप का है उसमें कुछ पर्टिकुलर पोर्शन एक्चुअली में लोगों को जरूरत है, वहां पे कफ सिरप लाइक एक्चुअल यूसेज जो उसका है वो लोग उसके लिए खरीद रहे होंगे। तो उनके पर्सपेक्टिव से और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से इफ आई सी दिस ऑप्शन इंक्रीज सेल्स ऑफ कफ सिरप इन द रूरल मार्केट, तो ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ अनएथिकल नहीं है, बिकॉज लाइक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आई एम सीइंग इट एज समथिंग जो मेरे को इसमें क्या दे सकता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट ऑब्वियसली दे सकता है, राइट? आई होप थोड़ा सा आपने मेरा लाइक लॉजिक बाई करा। अब मेरे को बताओ ऑप्शन में अगर आप स्पीच पे आपका कुछ भी कहना है ना, बिकॉज डीएम इज लाइक समथिंग जिसमें आप डिस्कस जितना करोगे ना उतना आप इम्प्रूव करोगे। तो लेट मी नो आपका क्या इसमें सब लाइक पर्सपेक्टिव था। आई हैव टोल्ड यू माई पर्सपेक्टिव एंड दिस इज एक्चुअली राइट, यही डिफरेंस है आपका, आपको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। इसलिए आई विल नॉट लाइक directly eliminate this second option, right? This will give me short term benefits, right? So right now I'm evaluating the options. Then third option, try and cut cost. बिल्कुल कॉस्ट कटिंग से मे बी इस सबसे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है, बट येस इट विल गिव मी अगेन शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, बिकॉज कॉस्ट कटिंग से हमेशा क्या होता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कैसे? एक सिंपल सी बात है, कोई चीज़ का आपने मैथ्स पढ़ी होगी ना, आपका सीपी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ है, आपका सेलिंग प्राइस फॉर एग्जाम्पल 120 रुपीज़ है, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपीज़ का हुआ। अब मैं अगर मैं आपको बोलूँ कि कॉस्ट कटिंग कर दी हमने, कॉस्ट कटिंग आपको ये प्रॉफिट बढ़ाना है, ठीक है, इसको आप इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आपको ये डिफरेंस बढ़ाना है तो आप इसको भी तो डिक्रीज कर सकते हो। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली कॉल्ड कॉस्ट कटिंग। तो इस 100 को में भी आपने लाइक 10% कॉस्ट कट कर दिए थ्रू डिफरेंट मेजर्स, तो ये कॉस्ट बन गई आपकी 90, लेकिन अभी भी आपने ये 120 पे सेल करा,
एंड कंज्यूमर में आपने प्राइस नहीं बढ़ाई, आप अपने एंड पे कॉस्ट कट कर रहे हो, विच एवर वे इट इज, राइट। अब वो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं है कि कैसे कॉस्ट कटिंग कैसे करिए, बट येस इन दिस केस द प्रॉफिट विल ऑब्वियसली इंक्रीज, सो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है इन द शॉर्ट टर्म, सो दीज आर गुड पॉइंट्स. Now, when I like see the fourth point, recruit more medical representatives in rural areas. Now, अब आपको इसमें ये evaluate करना पड़ेगा whether this step is actually needed. मुझे नहीं लगता this step is needed because इसने already इस पूरे पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर रखा था that LSP ऑलरेडी लाइक इज वेरी वाइब्रेंट. अब यहाँ पे वाइब्रेंट नहीं था बाकी जगह पे एक्सेप्ट इन रूरल एरिया, सो आई कैन कंक्लूड कि इन रूरल एरियाज LSP इज डूइंग वेल. Now, if they're doing well, they don't really need medical representatives. और ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक अनवांटेड है मेरे लिए, मेरे को इसको बढ़ा के कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी रूरल मार्केट में मेरा ना स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है, तो वहाँ पे मैं लाइक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बढ़ा दूंगा, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा कोई एडवांटेज नहीं होने वाला है. दिस इज नॉट गोइंग टू गिव मी एनी एडिशनल बेनिफिट, एंड हेंस व्हाट आई एम सेइंग इज ये जो फोर्थ ऑप्शन है सॉरी, ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ना, दिस इज नॉट समथिंग व्हाट आई विल बी टेकिंग एज अ लाइक स्टेप टू लाइक इंप्रूव माय बिजनेस इन द लॉन्ग रन. तो पहले तो मैं ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है जिसका कोई मेरे को एडवांटेज नहीं दिख रहा है, बिकॉज ऑलरेडी मेरा बिजनेस सही चल रहा है रूरल एरियाज में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स लगा के मेरा कॉस्ट और बढ़ ही रहा है, जरूरत ही नहीं मुझे, मैं क्यों बढ़ाऊंगा. तो ये फोर्थ जो जो ऑप्शन कंटेन करता है, आई एलिमिनेट दैट. सो आई एलिमिनेट दिस ऑप्शन, आई एलिमिनेट दिस ऑप्शन. नाउ अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन देखो तो ऑल दीज थ्री ऑप्शन कंटेन लाइक स्टेटमेंट 1 2 and 3. नाउ इफ यू इवैल्यूएट देम लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या जाएगा, सो विल डेफिनेटली पिन पॉइंट दिस द फर्स्ट वाला पॉइंट, इन्वेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग. दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो, बेस्ट पॉसिबल लाइक केस टू इम्प्रूव योर बिजनेस इन द लॉन्ग टर्म. कहीं ना कहीं आप इसमें और इसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख रहे हो, बट एक्चुअली में लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको किस में होने वाले हैं, फर्स्ट वाले में. सो द सीक्वेंस शुड डेफिनेटली स्टार्ट विद अ फर्स्ट. अब फर्स्ट को आप देखो, उसके करस्पॉन्डिंग आपको ऑटोमेटिकली एक ही ऑप्शन दिखेगा, एंड हेंस दिस विल बिकम द राइट आंसर. अब सीक्वेंस भी मैच भी करेगा अगर आप लॉजिकली देखना भी चाहोगे. इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है. कॉस्ट कटिंग शुड डेफिनेटली कम बिफोर इंक्रीजिंग सेल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पार्ट है उसका, लाइक इन दोनों के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो कॉस्ट कटिंग आपका पहला सोल्यूशन होना चाहिए. कब सिर्फ आप लाइक सेल्स बढ़ाओगे तो येस यू आर बेनिफिटिंग द gamut of people, the like bunch of people who are actually benefiting from कब सिर्फ, बट देन कहीं ना कहीं उसका शॉर्ट टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट भी है. इसीलिए सीक्वेंस में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आएगा, एंड हेंस द फर्स्ट ऑप्शन बिकम्स द राइट आंसर. Right, so this is how you evaluate the different options and then like eliminate karte hue move on to the right answer. Right, I hope you understood this. Now let's move on to the second problem on the same side. Now this is a kind of a HR based problem. So the first part actually remains same. This LSP company is a pharmaceutical company. Now the next part, let's start reading this. So Mr. Rastogi, HR head of LSP, is contemplating transferring Mr. Jose, right? You could read this as Jose, maybe Jose. I'll read this Jose. Mr. Jose from India to their Luxembourg office, right? So the HR head, Mr. Rastogi, is contemplating transferring Mr. Jose from India to the Luxembourg office. Mr. Jose's wife is also with the HR department of LSP, right? So husband and wife are both with LSP. Now, the couple is expecting their first child in the next 4 months. So they're expecting a child in the next 4 months, very shortly, and hence they want to be together. Okay, now this is very important. They want to be together because they're expecting a child. So Mr. and Mrs. Jose, they want to be together. Mr. Rastogi is wondering whether Mr. Jose would accept the transfer. If he doesn't, right, so there is a possibility that is doesn't accept the offer because they have to be together. So if he doesn't, Mr. Rastogi would have to send a less competent person for this job as early as possible. So अभी तक कितना समझ में आया कि like both of them, Mr. and Mrs. Jose, want to be together because they're expecting a child. But the company, Mr. Rastogi is also trying to send Mr. Jose, right? And like he's very competent. We can conclude from this because if he doesn't go, they're saying they would have to send a less competent person for this job and as early as possible. So jaldi bhi bechna hai, that is also important, right? They like very quickly need a person in Luxembourg.
The office in Luxembourg is very important for the company's future. So we are elaborating again, right? हम same चीज को substantiate कर रहे हैं. This decision, that is sending Mr. Rose to Luxembourg office, is very important because the office in Luxembourg is very important for the company's future, right? And Mr. Rose is obviously a very competent person. It is at its nascent stage, initial stages. Nascent is at the early stages. एंड डज नॉट येट हैव अ HR डिपार्टमेंट. तो वहाँ पे कोई HR डिपार्टमेंट नहीं है. HR क्यों दिया हुआ होगा? मे बी यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, ये मिस्टर रोजेज वाइफ इज ऑल्सो विद HR डिपार्टमेंट ऑफ LSP. सो एक सिंपल सोल्यूशन निकल के आ सकता था कि फॉर एग्जाम्पल उसको तो वो भेजना ही चाहते हैं, उसकी वाइफ को भी वहीं पे भेज दें बिकॉज वहाँ पे HR डिपार्टमेंट है, तो शील कीप हर जॉब. तो ये सोल्यूशन में भी पॉसिबल नहीं होने वाला है बिकॉज दिस ऑफिस इन लग्जमबर्ग डज नॉट हैव अ HR डिपार्टमेंट. अभी इनिशियल स्टेजेस पे है. सो मे बी दैट ऑप्शन इज ऑलरेडी रूल्ड आउट. मे बी ये पार्ट इसीलिए गिवन है. नाउ next part, hence it is not possible to transfer Mrs. Rose to Luxembourg, right? It is clearly mentioned also. तो उनको भेजना पॉसिबल नहीं है. जो एक सिंपल सोल्यूशन निकल के आ सकता था, भाई दोनों जाओ, दोनों साथ में भी रहोगे लग्जमबर्ग में, कंपनी का भी बेनिफिट है. सो कंपनी चाहती है कि वहां पे जाके कोई ऑफिस संभाले एंड दे वांट मिस्टर रोजे टू गो बिकॉज ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन. सो आई होप द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी क्लियर, राइट? कि क्या क्या कंडीशन है. मिस्टर रोजे को भेजना है कंपनी के लिए, वो ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दीज टू, मिस्टर एंड मिसेस रोजे, हैव टू बी टुगेदर. दे वांट टू बी टुगेदर बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड. ठीक, तो ये है आपका करंट सिचुएशन. नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड देन फॉलोड बाय द ऑप्शंस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस पर्सपेक्टिव टू रिजॉल्व द इशू? तो इशू बेसिकली वही है, दे वांट टू सेंड बट वो साथ में ही हमेशा रहना चाहते हैं. सो देयर हैज टू बी समथिंग जो ये लाइक इम्पैसे को, ये सिचुएशन को रिजॉल्व करे. लेट्स रीड द ऑप्शन. लेट्स ट्राई एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस वन बाय वन. So the first one, giving us salary hike to Mr. Rose with a promise to, like promise is like not really something जो तुरंत होने वाला है ना. with a promise to transfer, promise पे बहुत ज़्यादा like businesses काम नहीं करते हैं. there has to be like a certain validation to it. Giving a salary hike to Mr. Rose with a promise to transfer Mrs. Rose to Luxembourg in the near future. अब ये नियर फ्यूचर ना थोड़ा वेग टर्म है. अब ये नियर फ्यूचर में फॉर एग्जांपल ऐसा हो गया, अब ऐसे समझना, आपने बोल दिया कि नियर फ्यूचर में हम मिस्टर रोजे को लग्जमबर्ग ट्रांसफर कर देंगे. मिस्टर रोजे आप अभी चले जाओ. फॉर एग्जांपल उसके जाते ही उसका कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, तो फिर तो ये उसके लिए वैलिड सिचुएशन नहीं है ना. एंड इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड इन द नेक्स्ट 4 months एंड दे वांट टू बी टुगेदर. सो देयर इज एब्सोल्युटली नो वे दैट दे आर गोइंग टू बी सेपरेट. सो ये सैलरी हाइक देख के यू कैन नॉट कन्विंस मिस्टर रोजे बिकॉज मेजर क्राइटेरिया जो ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे सिचुएशन में, दैट इज दे वांट टू बी टुगेदर. सो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट गोइंग टू रिजॉल्व द इशू एंड हेंस आई कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन. लेट्स रीड द सेकंड स्टेटमेंट. Giving Mr. Rose option to work from home while in Luxembourg. So this takes care of the first part. वो कंपनी का जो पर्सपेक्टिव है, कंपनी मिस्टर रोजे को भेजना चाहती है लग्जमबर्ग में, वो हो जाएगा. मिस्टर रोजे ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम होम while in Luxembourg so that she can be with मिस्टर ओजे. नाउ ये पार्ट कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है. आई विल नॉट से दिस इज द राइट आंसर बिकॉज आई एम इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द इनकरेक्ट आंसर्स, बट येस आई कैन डेफिनेटली से दिस कुड बी विथहेल्ड राइट नाउ. इसको हम बचा के रख सकते हैं, बाकी ऑप्शन देखेंगे क्या आता है तब इसको हम देखेंगे बिकॉज दिस टेक्स केयर ऑफ बोथ द सिनेरियोज. वो दोनों साथ में भी रहेंगे. साथ में क्यों रहेंगे? बिकॉज दे आर गिविंग हिम द ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम होम वाइल इन लग्जमबर्ग. तो लग्जमबर्ग चला भी जाएगा, वो घर पे रहेंगे, तो ये साथ में रह भी सकते हैं. सो दिस इज काइंड ऑफ अ गुड सोल्यूशन. मे बी इट रिजॉल्व दिस इशू, तो इसको बचा के रखते हैं. लेट्स रीड द थर्ड स्टेटमेंट. गिविंग मिस्टर रोजे ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम इंडिया फॉर द फर्स्ट फॉर द टाइम बीइंग सो दैट ही कैन बी विद मिस्टर रोजे इन इंडिया. तो ये दोनों को साथ में तो रख ले जाएगा ये ऑप्शन, बट दे आर टेलिंग हिम यू कैन वर्क फ्रॉम इंडिया. तो ये तो रिजॉल्व कंपनी वाला पार्ट नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव. तो ये तो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो तो चाहते हैं ना वो जाए, तो ये तो रिजॉल्व करेगा नहीं. ठीक है, सो दिस ऑल्सो गेट्स एलिमिनेटेड. फोर्थ, गिविंग अ सैलरी हाइक टू मिस्टर रोजे टू कंपेंसेट फॉर मिस्टर रोजेज सैलरी. तो मिस्टर रोजे सैलरी को कंपेंसेट करने के लिए मिस्टर रोजे का सैलरी हाइक दिया सो दैट शी कैन ज्वाइन मिस्टर रोजे एट लक्समबर्ग विद इवन विद अ लॉस ऑफ पे. दिस इज काइंड ऑफ अ गुड ऑप्शन बिकॉज एक तरीके से आप कंपेंसेशन दे रहे हो बिकॉज शी विल हैव टू लाइक ड्रॉप हर जॉब वाइल इन इंडिया, राइट? उसको जॉब छोड़नी है. शी कैन गो विद हर हस्बैंड टू लिव इन लक्समबर्ग
that Mr. Rose also is going to Luxembourg, so they both will live together, so उनकी वो वाली डिमांड पूरी हो जाएगी. एंड कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी इट इज ओके, कंपनी के पर्सपेक्टिव से दे वांट मिस्टर ओजे टू गो, सो दिस कैन ऑल्सो बी द राइट आंसर. इसको भी हम बचा के रखते हैं, इसको हम बाद में इवेलुएट करेंगे जितने भी पॉसिबल केसेस है. फाइनल स्टेटमेंट, आस्किंग मिस्टर रोजे टू एक्सेप्ट द ऑफर राइट नाउ बट गिव हिम up to 6 months to join Luxembourg office. This will again like take care of Mr. Rose and Mrs. Rose's like delivery problem, right? वो किड तब तक हो जाएगा बिकॉज नेक्स्ट 4 months में वो आने वाला है, तो वो पार्ट तो ठीक है, बट देन अगेन दे नीड समवन टू बी इन द लग्जमबर्ग ऑफिस एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल, ये मेंशन था. तो अगेन दिस इज नॉट गुड फ्रॉम द कंपनीज पर्सपेक्टिव, सो दिस ऑप्शन विल ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड. नाउ लेट्स टेक दिस सेकेंड एंड द फोर्थ ऑप्शन इनटू अकाउंट. सेकेंड वाला क्या था, गिविंग मिस्टर रोजे ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम होम वाइल इन लग्जमबर्ग सो दैट शी कैन बी विथ मिस्टर रोजे. इसको अगर आप कंपेयर करोगे फोर्थ ऑप्शन से, गिविंग अ सैलरी हाइक टू मिस्टर रोजे टू कंपेंसेट फॉर मिस्टर रोजे सैलरी सो दैट शी कैन ज्वाइन मिस्टर रोजे एट लग्जमबर्ग इवन विद अ लॉस ऑफ पे. देखो अब यहाँ पे ना ये है, देखने में आपको ये सही लग रहा होगा, बट ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से समझना, इसमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये कहीं भी गिवन नहीं है या ये मेंशन नहीं है, ये क्राइटेरियन हमारे पास नहीं है कि मिसेस ओजे के लिए उसकी जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मिस्टर रोजे के लिए मिसेस ओजे के लिए जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहीं नहीं है. जो मेन उनका आपस में क्राइटेरिया है मिस्टर एंड मिसेस ओजे का, दे हैव टू बी टुगेदर. सो वाई डू आई नीड टू कंपेंसेट हर, जब इस तरीके से कोई मेंशन नहीं है. एंड इफ आई इवेल्युएट दीज टू ऑप्शंस कंपनी के पर्सपेक्टिव से, ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से, सेकेंड ऑप्शन इज मच बेटर, अ कॉस्ट फ्रेंडली ऑप्शन. बिकॉज सेकेंड वाले में, ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन था, इसमें आप उनको एडिशनल लाइक कंपेंसेशन दे रहे हो, वो चला जा रहा है, वो दोनों साथ में रह रहे हैं, बट अगर आप इवेल्युएट करो तो इसमें एक थर्ड पैरामीटर है कि कंपनी का खर्चा ज़्यादा हो रहा है. इसी के कंपैरिजन में अगर आप सेकंड को देखो तो पहले 2 पॉइंट इसमें भी फुलफिल हो रहा है कि वो वहाँ पे चला भी जा रहा है लग्जमबर्ग में, बिकॉज ये घर से काम कर सकता है, तो ही एंड मिसेस ओजे कैन लिव टुगेदर. तो उनके जो 2 मेजर क्राइटेरिया है इस पूरे सेट का, वो दोनों तो इसमें भी फुलफिल हो रहा है, इसमें भी फुलफिल हो रहा है. बस फोर्थ वाले में एक एडिशनल पार्ट, कंपनी का कॉस्ट बढ़ जा रहा है. तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से द कंपनी will want to save cost also, right? That has to be taken into mind. तो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से आउट ऑफ सेकंड एंड फोर्थ, द सेकंड स्टेटमेंट इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर, द मोस्ट appropriate option, right? I hope you understood this. Let's move on to the third one. Now the same condition is again there. Mr. Khan used to work as a vice president of LSP India, right? So Mr. Khan is used to work as a vice president of LSP India. However, he had resigned from LSP India for a better job in New York, right? So उसने LSP India को like resign कर दिया to find a better job in New York. In the meantime, his wife was promoted to the head of the HR, right? Again, mistake. Head of HR of LSP India. Mrs. Khan had struggled hard to reach this position and was quite popular and respected within the organization. Mrs. Khan was contemplating whether she should give up her career and join him in New York. Mrs. Khan is considering the following actions. Now, current situation क्या है? Mr. Khan ने resign कर दिया है. He is looking like he has a better job offer in New York. तो उसके पास एक job offer है. अब उसकी wife का context दिया हुआ है. Right, his wife was promoted to the head of HR of LSP India. So she has been promoted. And एक और बहुत important point है, Mrs. Khan she has struggled hard to reach this position and was quite popular and respected within the organization. तो वो जो like उसका जो promotion हुआ है उसके काफ़ी time के बाद हुआ है, she had struggled hard to reach that particular position. Now she is contemplating कि क्या करे, like अपना career छोड़ के उसको न्यूयॉर्क में join करे कि नहीं करे, like so she has like dilemma in her mind, right? Mr. Khan is considering the following actions. Now, these are the 5 actions. Now, पहले ये देख लेते हैं करना क्या अपने को. Which of the following sequence of actions can be immediately taken by Mrs. Khan to maintain her work-life balance?
तो मेन हमारा क्राइटेरियन कौन होने वाला है? पहले तो मेन स्टेक होल्डर कौन होने वाला है? मिसेस खान। और मिसेस खान का कंडीशन क्या है, किसके अराउंड हमें इवेलुएट करना है ऑप्शंस को? शी वांट्स टू मेंटेन हर वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत क्लियर कट मीनिंग होना चाहिए। हम किसी दूसरे को, एक दूसरे में लाइक किसी एक को पूरी प्रायोरिटी नहीं देने वाले हैं। विल हैव टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन द टू। शी, बिकॉज शी हैज प्रोग्रेस टू दैट पर्टिकुलर पोजिशन, शी हैड बीन प्रमोटेड बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, so she's not like going to like give up her job very easily, right? But then at the same point of time she is looking to be with Mr. Khan, so she has to maintain a work life balance. So which of the following sequence of actions? So again दो ऑप्शन आपको उठाने पड़ेंगे, दो ऑप्शन मतलब यहाँ पे 5 में से 3 ऑप्शन हम एलिमिनेट करने वाले हैं, राइट? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन, टेक अ ब्रेक फॉर द टाइम बीइंग एंड फोकस ऑन पर्सनल लाइफ। इसमें मैं यही तुरंत से बोल सकता हूँ ये गलत है। टेक अ ब्रेक फॉर द टाइम बीइंग एंड फोकस ऑन पर्सनल लाइफ, दिस टेक्स केयर ओनली वन साइड ऑफ द कॉइन, वन साइड ऑफ द प्रॉब्लम हियर, राइट? वर्क लाइफ बैलेंस में दोनों को मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा। शी इज नॉट गोइंग टू गिव अप हर जॉब जस्ट टू फोकस ऑन हर पर्सनल लाइफ। ऑल्सो दिस स्टेटमेंट लाइक मे बी लाइक हैज एन implication that her personal life right now is going through some kind of a turmoil, maybe उसको problems है, so because she has to focus on a personal life जो कि problem है, maybe she has to take a break, so ये part गलत है, so definitely this is not going to be the like right statement. Let's read further also, given her reputation she can also always get back to the same job if required। ठीक है, futuristic sense में बात नहीं करनी है, currently वो जिस situation पे पहुंची है, जिस position पे पहुंची है after her hard work, she is definitely not going to give up her job, so this is not going to resolve her work life balance situation, so I'll eliminate this first option. Because I'm eliminating this first option, तो इसमें भी जहां जहां फर्स्ट है आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, राइट? इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, सो आई एलिमिनेट दिस, ये वाला फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, इसमें भी 1 है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें भी 1 है, इसमें भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो मेरे पास डायरेक्टली 4th और 5th ऑप्शन बचे हुए हैं, तो 2nd 3rd और 5th है। 2nd 3rd और 5th में इवेलुएट करना है। सेकेंड स्टेटमेंट, गो टू न्यूयॉर्क on leave without pay for 2 months to help Mr. Khan settle down. After that, she can come back and resume her responsibility in LSP India. Again, problem है इसमें, क्या बोल रहा है? गो टू न्यूयॉर्क एंड लीव विदाउट पे फॉर 2 months। जॉब छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? नहीं छोड़ना है उसको, उसने वो सिचुएशन कमाया है, so she is not going to leave her job. Also, this part is not there like in the like passage. She is going to leave for 2 months to help Mr. Khan settle down. ये प्रॉब्लम नहीं है, लाइक मिस्टर खान डजंट नीड एनी हेल्प सेटलिंग डाउन, ऐसा कुछ भी सिनेरियो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ऑल्सो इवन इफ वी से कि दिस पार्ट इज लाइक सेइंग कि दे वांट टू बी टुगेदर, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस में जो लाइफ वाला पार्ट है, इवन इफ टेक्स केयर ऑफ दिस, जो वर्क वाला पार्ट है वो यहाँ से रिजॉल्व नहीं हो रहा है। लाइक लीव विदाउट पे वो भी और नेगेटिव एक तरीके से, राइट? आफ्टर दैट शी कैन कम बैक एंड रिज्यूम हर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन LSP इंडिया, सो शी इज नॉट गोइंग टू गिव दिस सेकेंड स्टेटमेंट एनी चांस, बिकॉज उसको जॉब छोड़नी पड़ रही है। ऑल्सो लीव विदाउट पे है। ऑल्सो मिस्टर खान ही नीड सम हेल्प सेटलिंग डाउन, ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं है, तो आई ऑल्सो एलिमिनेट दिस सेकेंड ऑप्शन। तो इसमें से फिर मैं ये सेकेंड वाला पार्ट भी एलिमिनेट कर सकता हूँ। अब मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, दैट इज 3rd and 5th। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रीड द 3rd and 5th, ऑल्सो आई कैन रीड द 4th, देख लेते हैं। So third statement, request Mr. Khan to look for an equivalent job in India. This is very good. Why? Mr. Khan ना like he had resigned, उसका ऐसा दिया था कि उसने रिजाइन कर दिया है for a better job in New York. अब ऐसा जो कंडीशंस आपकी मिसेस खान के लिए दी हुई थी ना, शी वॉज प्रमोटेड, शी वॉज क्वाइट पॉपुलर, रिस्पेक्टेड, तो वो छोड़ना नहीं चाह रही है अपना पार्ट, ऐसा कुछ आपका मिस्टर खान के लिए नहीं दिया है। ऑल्सो देयर इज दिस गुड वर्ड रिक्वेस्ट, तो शी कैन रिक्वेस्ट मिस्टर खान टू लुक फॉर एन इक्विवेलेंट जॉब इन इंडिया। सो एक तरीके से जो ये आपका वर्क लाइफ बैलेंस है वो उसको मैनेज कर देगा, बिकॉज मिस्टर खान कैन लुक फॉर अ जॉब। ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंडिया में नहीं काम कर सकता, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है आपका, राइट? उसने बस ये दिया हुआ है कि उसने रिजाइन करा है फॉर अ बेटर जॉब, तो बेटर जॉब अगर उसको वहाँ पे मिली है ना, तो यहाँ पे भी शी कैन रिक्वेस्ट हिम टू लुक फॉर एन इक्विवेलेंट जॉब। सो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज वेरी बैलेंस्ड इन नेचर। वो अगर इंडिया में उसको सेम लेवल की जॉब मिल गई मिस्टर खान को, सो ये दोनों साथ में भी रह सकते हैं, लाइफ वाला पार्ट इज टेकन केयर ऑफ, also she can continue working in India itself, so work life balance will get maintained. So this third statement is also fine, इसीलिए थर्ड वाला स्टेटमेंट सही भी रहा होगा।
फोर्थ स्टेटमेंट, रिजाइन फ्रॉम एलएसपी इंडिया, जॉइन मिस्टर खान इन न्यूयॉर्क एंड लुक फॉर अ सिमिलर जॉब देयर। ये तो बिल्कुल गलत है। जॉब जो उसने इतनी मेहनत से पाई उसको सीधे सीधे रिजाइन कर दो, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन आपका अगेन रॉन्ग है। फोर्थ वाला भी एलिमिनेट हो जाता आपका, तो फोर्थ वैसे भी आपको चेक करना ही नहीं था, इसलिए फोर्थ इंटायरली गलत है। फिफ्थ वाला हैज टू बी लाइक गुड, लेट्स रीड दिस। रिक्वेस्ट एलएसपी इंडिया फॉर अ सिमिलर पोजीशन इन एलएसपी यूएसए एंड फॉलो मिस्टर खान टू न्यूयॉर्क। फॉलो मिस्टर खान टू न्यूयॉर्क साथ में रह जाते, लाइफ वाला पार्ट इज टेकन केयर ऑफ, एंड रिक्वेस्ट एलएसपी इंडिया फॉर अ सिमिलर पोजीशन इन एलएसपी यूएसए। तो उसने इतनी मेहनत से जो हेड ऑफ एचआर बनी है उसको सेम टाइप की अगर आप प्रोफाइल दे दोगे यूएसए में, सो शी मे बी अग्री टू दिस बिकॉज शी ऑल्सो गेट्स टू लिव विद मिस्टर खान, एंड हेंस दिस फिफ्थ एंड third combo makes the ideal scenario, most appropriate scenario in this particular case, right? So I hope you understood this. So this was a very good set. इसमें अलग अलग problems में अलग अलग density है, I would say. Now let's do one more set. Now this is Mohan's, so we have the following problems on this. Let's start reading this. Mohan was a popular fast food joint at Connaught Place, Delhi. Initially, Mohan handled the business alone. His sons Ram and Kishan. So there are three people involved. Mohan, there is a fast food joint at CP Delhi. Initially, Mohan handled his business alone. His sons Ram and Kishan joined the business after graduation from college. Ram was entrepreneurial in nature. Subsequently, another branch of Mohan's was opened in Panipat. ठीक है. Mohan had chosen Ram to head the Panipat branch. So basically, दो जगह business है. One is in like Delhi, the other is in Panipat. Right? Panipat में who is operating? Ram is operating. Mohan had chosen Ram to head the Panipat branch. Though Ram increased sales in the short term, right? दो लगा हुआ है तो we have to be very careful. Though Ram increased the sales in the short term, he had stopped using premium quality organic vegetables, the speciality of Mohan's. So एक तरीके से ना, देखो यहाँ पे समझाता हूँ आपको. The speciality of Mohan क्या है? Using premium quality organic vegetables. So this is kind of a brand value. अब ये brand image जो होती है ना वो इसी तरीके से establish होती है. I know Mohan's as the like a fast food chain which uses premium quality vegetables. So ये मोहन नाम इस चीज के लिए फेमस है. इस तरीके से ब्रांड इमेज आपकी क्रिएट हो जाती है. ठीक है, ये पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा. मोहन एंड किशन वर नॉट हैप्पी विद द वे with his way of doing business. So मोहन एंड किशन, अब ये मोहन एंड किशन, किशन कौन सा था? जो दूसरा वाला आपका भाई था. सो बेसिकली ये इनिशियली मोहन अकेले काम कर रहा था और राम को उसने कहाँ पे भेज दिया था? आपका पानीपत ब्रांच में, राइट? तो किशन में भी इज ऑल्सो एट दिल्ली वाला पार्ट. ठीक है, ये दिया भी हो आगे जाके लिखा होगा. यस. सो मोहन एंड किशन वर नॉट हैप्पी विद हिज वे ऑफ डूइंग बिजनेस. ठीक है, ये वे ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब इज नॉट यूजिंग क्वालिटी वेजिटेबल्स, क्वालिटी प्रीमियम वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स. Now, the foremost challenge for Mohan was to sort out this issue with Ram. ये issue जो भी described था. Mohan knew that replacing Ram with Kishan was difficult. Now, this is important. तो replacement possible नहीं है. This is very difficult as Kishan did not want to leave Delhi. So this will come in very handy later on. So Kishan is not willing to go to Panipat. तो Kishan doesn't want to leave Delhi. So Kishan आपका दिल्ली में ही रहना चाहता है. However, giving a free hand to Ram might have long-term negative consequences. Might have long-term negative consequences. Free hand मतलब जो तुम कर रहे हो उसको करते रहो. इसकी वजह से आपका long-term negative consequences हो सकते हैं. ये आपका कंडीशन आपके दिया हुआ है. Mohan was confused about the future of course of actions. ठीक. So I really hope आपको ये कंडीशन बहुत क्लियरली समझ में आया होगा. जो भी यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपका है नहीं. So we'll have to start reading the questions again and question by question decide करेंगे क्या डेंसिटी है, किस तरीके से इसको evaluate करना है. So Mohan sought the help of 5 consultants who give the following options. So there are 5 options and करना क्या है? Which of the following set of options would support? अब देखो, अब currently जिस तरीके से ये पूरा पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड है उस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि this Mohan has a problem with Ram. Even though short term में sales बहुत ज़्यादा increase कर गई है, but just because he is not using those premium quality organic vegetables, so ये जो उसका way of operation है, Mohan and Kishan are not happy. Kishan is not like going to like पानीपत कि वो control कर पाए. तो राम
को लाइक कुछ सोल्यूशन लाइक फिगर आउट करना पड़ेगा मोहन को, राइट। सो फ्यूचर में ऐसा ना हो कि उसके कुछ लॉन्ग टर्म नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो। सो हमें ना फर्स्ट थॉट पे लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है, बट हमें क्या करना पड़ेगा ना, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, राइट। बिकॉज बहुत ज़्यादा ना कभी कभी ऐसा होता है डीएम में कुछ प्रॉब्लम्स में जिस स्टेक होल्डर के करस्पॉन्डिंग हमें इवेलुएट करना है, वो अगर हमने ध्यान से नहीं पढ़ा तो हमारा पूरा सिनेरियो गलत हो सकता है। बिकॉज ऑप्शंस पढ़ने में कभी गलत नहीं लगेंगे, हो सकता है एक ऑप्शंस पढ़ते ही आपका बायस क्रिएट हो जाए। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following set of options would support Ram's argument of not using organic vegetables? So basically ना हमें यहाँ पे options ऐसे उठाने हैं which सपोर्ट राम्स आर्ग्यूमेंट, जो राम जो पानीपत में बैठा है उसको सपोर्ट करना है उन स्टेटमेंट्स के थ्रू, व्हाई ही इज नॉट यूजिंग दोज ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। प्लीज कीप दिस इन माइंड, ठीक है। हमें सपोर्ट करना है तो हम वैसे स्टेटमेंट ढूंढने वाले हैं। हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट ढूंढेंगे, बोलेगा नहीं नहीं जरूरी नहीं है मे बी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, देयर हैज टू बी अ सर्टेन रीजन इन दोज ऑप्शंस जो कि राम के सपोर्ट में जाने वाले हैं, राइट। सो विद दैट फ्रेमवर्क विल बी इवेल्युएटिंग ऑल दी ऑप्शंस. Now there is an all the above option also, so I have to read all the statements. Let's read the first statement. Organic vegetables might be a big success at Connaught Place, but awareness about organic vegetables is low among Panipat customer. Now this could be a valid point because हम राम को सपोर्ट कर रहे हैं ना कि क्यों वो यूज कर नहीं रहा है. So if you read the statement again, organic vegetables might be a big success for Connaught Place CP. बट अवेयरनेस अबाउट ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स इज लो अमंग पानीपत कस्टमर, कि भाई वहाँ के लोगों को पता है वहाँ पे बहुत अच्छा है उसका रिस्पॉन्स सीपी पे, बट पानीपत के कस्टमर्स को ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के बारे में पता ही नहीं है. अब यहाँ पे आप ये मत सोचना स्टार्ट करना कि मोहन्स के पर्सपेक्टिव से हमें देखना है. मोहन्स के पर्सपेक्टिव से हमें इवेल्युएट करना ही नहीं है इस प्रॉब्लम में, क्योंकि मोहन तो चाहता है ना कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल यूज करे, बट मेरे को मोहन के पर्सपेक्टिव से सोचना ही नहीं है. मुझे किसके पर्सपेक्टिव से सोचना है? मुझे राम के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि वो क्या स्टेटमेंट है जो राम जो यूज नहीं कर रहा है ऑर्गेनिक वेजिटेबल, उसके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करे. सो उसका एक आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली हो सकता है कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स माइट बी सक्सेसफुल एट सीपी, बट अवेयरनेस ही नहीं है आपका ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का पानीपत में. सो मे बी इज नॉट यूजिंग organic vegetables because of that reason. So this first statement definitely is a good argument in support of Ram, right? I hope you see the difference. आपको देखने में गलत लग सकता है इस कॉन्टेक्स्ट की वजह से, but because of this question, this is not the wrong answer. ये हम होल्ड करेंगे. This can be like the right answer. ये होगा हमारे सेट ऑफ ऑप्शंस में. Second, the Connaught Place model can be implemented in Panipat provided the business is prepared to face the consequences. अब ये ना राम के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है. ये क्या बोल रहा है? सीपी का जो मॉडल है पानीपत में लगा सकते हैं प्रोवाइडेड द बिजनेस इज फेस प्रिपेयर टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज. अब ये वैसी बात हुई, अब ऐसे समझना, आई एक्सप्लेन टू यू इन वेरी लेमन टर्म्स. ये बहुत जैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राम, ठीक है, मुझे आर्ग्यूमेंट देना है कि क्यों मैं वहां पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यूज नहीं कर रहा. मुझसे पूछा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन पूछ ही रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑप्शंस वुड सपोर्ट राम्स आर्ग्यूमेंट. सपोज मेरे से पूछा जा रहा है कि भाई मेरे को ये बताओ कि तुम वहां पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यूज क्यों नहीं करते हो. उसके लिए मैं सेकंड स्टेटमेंट देता हूं. फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसा है, अब समझना, मेरे से रीजन पूछ रहे हो आप, बट मैं ये कह रहा हूं देखो ऐसा है, सीपी का मॉडल पानीपत में कर लो इंप्लीमेंट, बट ऐसा है जो होगा, जो भी नेगेटिव होगा उसको समझ लेना तुम. दिस इज नॉट अ वेरी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ मी. ये बिल्कुल फ्लॉड आर्ग्यूमेंट हो गया. मेरे को रीजन देना है कि क्यों मैं वहां पे यूज नहीं कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट मैं बोल रहा हूँ देखो ऐसा है, जो करना है वहां पे जाके कर लो, तुम्हें वो मॉडल वहां पे अप्लाई करना है वो वहां पे जाके अप्लाई कर लो, बट उससे जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होगा वो अपना तुम समझ लेना, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. This is not what I'm actually looking for. The second statement definitely will be eliminated. Right? I hope you see it very logically कि second वाला statement मेरा argument है ही नहीं. मैं उसको यूज करके मैं ये चीज बता ही नहीं पा रहा हूँ कि क्यों मैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स नहीं यूज कर रहा हूँ. इट इज लाइक डॉजिंग दिस प्रॉब्लम बाय बीइंग वेरी अग्रेसिव एक तरीके से. ठीक है, तो सेकंड वाला मेरा डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाएगा. सो व्हाट आई विल डू इज, जो ऑप्शन में सेकंड वाला स्टेटमेंट है ना, आई विल गो अहेड एंड एलिमिनेट. तो सेकंड वाला एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से भी ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव भी एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज सेकंड वाला इंक्लूड हो जाएगा. सो अब यहाँ से क्या क्या बचा आपका, फर्स्ट थर्ड फोर्थ,
फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वाला स्टेटमेंट. सो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ पे अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते. आई डायरेक्टली रीड द फिफ्थ स्टेटमेंट. अगर वो एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है इन सपोर्ट ऑफ राम तो मेरा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा. इफ इट इज नॉट, मेरा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा. लेट्स रीड दिस फिफ्थ स्टेटमेंट. Premium quality organic vegetables are not easily available in Panipat. Definitely a very logical argument in support of Ram. भाई प्रीमियम क्वालिटी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अवेलेबल ही नहीं है आपका पानीपत में, तो मैं कहाँ से यूज करूँ? सीधा सा आर्ग्यूमेंट है. सो दिस फिफ्थ स्टेटमेंट इज वेरी गुड. सो आई विल डेफिनेटली से कि द थर्ड ऑप्शन इज गोइंग टू बी माई राइट आंसर. आया समझ में? तो इसीलिए ना आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा, आपको लाइक ऑप्शन बाय ऑप्शन सोचना पड़ेगा. मे बी ऐसे प्रॉब्लम्स में आप पिन पॉइंट कर पाए ये वाला बिल्कुल स्टेटमेंट सही है. अब वो किसी ऑप्शन में अगर नहीं है तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं हो सकता. तो यहाँ पे अपने को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ. ऑप्शन इस तरीके से फ्रेम्ड थे कि सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए एक लॉजिकल आर्गुमेंट, तो सेकंड वाले से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. और फर्स्ट एंड थर्ड में सिर्फ डिफरेंस किस स्टेटमेंट का था? फिफ्थ वाले स्टेटमेंट का डिफरेंस था. आई रेड द फिफ्थ स्टेटमेंट एंड दैट वाज परफेक्टली फाइन एज एन आर्ग्यूमेंट. तो सीधा सीधा वी कैन गो अहेड एंड टिक द थर्ड ऑप्शन. Right, I hope you are enjoying this lesson now. Right, I feel very good taking up DM like classes. मज़ा आता है. लाइक ये बहुत डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है. आपको ना अगर सोचना समझ में आ गया कैसे इवैल्यूएट करना है, कैसे एलिमिनेट करना है ना, थिंग्स विल बिकम वेरी इजी. ऑब्वियसली देयर विल बी सम सब्जेक्टिविटी. आई एम नॉट सेइंग कि आप 16-17 प्रॉब्लम्स करोगे तो भाई उसमें से 16-17 सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. देयर विल बी अ फ्यू रॉन्ग, दैट इज परफेक्टली नॉर्मल. लीविंग क्वेश्चंस इज ऑल्सो गुड आइडिया. अभी तो हम लाइक क्लास कर रहे हैं इसलिए विल सॉल्व एवरीथिंग. मे बी आपको कहीं पे लाइक 6 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, 1 or 2 प्रॉब्लम्स यू हैव सम लाइक you don't develop any kind of reasons on those problems. आप एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे हो, लीव those problems. 6 में से 4 करा, बिल्कुल सही, काम खत्म. अल्टीमेटली 22 प्रॉब्लम्स में से इफ यू स्कोर मे बी 14-15 ना, आप ऑलमोस्ट टॉपर्स की लीग में होगे, मैं आपको बोल रहा हूँ. ठीक है, बाकी कट ऑफ तो ऑब्वियसली और नीचे होती है, बट येस लीविंग क्वेश्चंस इज अगेन लाइक गुड थिंग टू डू इन डीएम सेक्शन ऑल्सो. Now let's move to quickly to the next problem. So this statement remains same. Now the second part, Mohan sought feedback. The second problem, Mohan sought feedback from a few of the businessmen friends, right? Few of his businessmen friends who are familiar with both the branches. Here is what they said. So there are 4 businessmen. So we'll have to read those statements. So question क्या है? If Mohan thinks of these as valid concerns, so उनके concerns हो सकते हैं जो भी पढ़ेंगे हम. If Mohan thinks all these are valid concerns, which of the following actions would be best for the business? So major stakeholder कौन हुआ? आपका business हुआ. यहाँ पे business के corresponding we'll have to evaluate. Now concerns क्या है? Let's read them one by one. Customers of CP and Panipat are very different. तो पहला वाला बंदा बोलता है कि देखो दोनों जगह का ना जो बिजनेस है वही काफ़ी, बिजनेस नहीं, दोनों जगह का जो आपका कस्टमर बेस है वो काफ़ी डिफरेंट है. नाउ इस स्टेटमेंट को जब मैं पढ़ता हूँ ना तो मुझे समझ में आता है कि देखो राम ने जो कर रहा है ना वो करता रह सकता है, बिकॉज ये जो बिजनेसमैन 1 है ये क्या बोलता है कि दोनों जगह के कस्टमर ही डिफरेंट है. यहाँ के कस्टमर को आदत है फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की, तो वहाँ के अगर कस्टमर डिफरेंट है तो हो सकता है उनको आदत ही ना हो, मे बी ज़रूरत ना हो. इस तरीके से हम सोच सकते हैं. तो जो करंट सिचुएशन है ना, करंट सिचुएशन जो है उसमें मेन प्रॉब्लम मोहन को है क्या कि वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यूज ही नहीं कर रहा है. बाकी सब कुछ सही है एक्चुअली में, उसने क्योंकि सेल्स बढ़ा रखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फर्स्ट बिजनेसमैन के करस्पॉन्डिंग जो क्राउड है, जो कस्टमर बेस है ना, वही डिफरेंट है. तो मे बी जो एग्जिस्टिंग चल रहा है बिजनेस मॉडल, जिस तरीके से राम ऑपरेट करना है, इट इज़ नॉट सो रॉन्ग. तो करंट स्टेटस में कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं दिख रहा है अगर मैं बिजनेसमैन 1 का पर्सपेक्टिव देखूँ. ठीक है. नाउ बिजनेसमैन 2 क्या बोलता है? Customers in Panipat are extremely happy with Ram's behavior. This is also supporting the current situation. राम ने सेल्स बढ़ा दी है, वो यूज कर नहीं रहा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, बट फिर भी कस्टमर्स आर एक्सट्रीमली हैप्पी विद राम्स बिहेवियर. तो अभी करंटली मेरे को कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है अगर मैं फर्स्ट और सेकंड वाले बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव देखूं. ठीक है. थर्ड बिजनेसमैन, पानीपत ब्रांच डज नॉट यूज द सेम क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स. ये तो हमें पता है, सेम क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स मतलब एक तरीके से ऑर्गेनिक वेजिटेबल यूज नहीं कर रहे हैं, बट मेंटेन्स गुड हाइजीन एंड टेस्ट. तो एक पार्ट तो है कि वो जो बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स है वो सेम क्वालिटी का यूज नहीं कर रहा जो कि दिल्ली वाला ब्रांच, सीपी वाला ब्रांच कर रहा है, बिकॉज वो यूज कर रहे हैं प्रीमियम क्वालिटी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स.
पानीपत ब्रांच नहीं कर रहा, विच इज अंडर द सुपरविजन ऑफ राम, वो नहीं कर रहा, बट स्टिल इट मेंटेन्स गुड हाइजीन एंड टेस्ट। तो अगेन जैसा चल रहा है ना, उसमें बहुत ज्यादा अपने को प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जैसा भी है वो अच्छी तरीके से ये स्टेटमेंट्स आपको बता रहे हैं, राइट? ये सब सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से करंट सिचुएशन को। फोर्थ businessman says, who knows, tomorrow the customers of Panipat might also appreciate what CP customers appreciate today। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, अभी तक तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बिजनेसमैन का जितना भी स्टेटमेंट था ना, वो करंट सिचुएशन जो चल रही जैसे भी है, जो भी करंट बिजनेस दोनों जगह ऑपरेट कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है। बट द फोर्थ स्टेटमेंट सेज कि ठीक है जो भी है अभी है फिलहाल, बट हु नोज tomorrow the customers of Panipat might also appreciate what CP customers appreciate today। What do they appreciate? The fact that Mohans is actually using premium quality organic vegetables। वो सबसे important consideration है। वही बोल रहा है कि कल को हो सकता है कि पानीपत वाले लोग वही अप्रिशिएट करने लगे जो सीपी वाले कस्टमर अप्रिशिएट करते हैं, राइट? सो यहाँ पे इस वाले पार्ट को मेरे को मेन थोड़ा सा वैल्यूएशन देनी पड़ेगी, बिकॉज बाकी तीन जो बोल रहे हैं वो ऑलरेडी मेरा सेटअप में है, वो ऑलरेडी चल रहा है। तो फोर्थ वाले को मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, फोर्थ वाला मैं कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ, एंड ओवरऑल मेरे को कैसे सोचना है विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड बी बेस्ट फॉर द बिजनेस, राइट? सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, ट्रेनिंग किशन टू रिप्लेस राम इन अ फ्यू मंथ्स, दिस इज नॉट गोइंग टू रिजॉल्व। क्यों? पहले तो देखो राम के बिहेवियर से सारे लोग खुश हैं, पहले तो यही दिया हुआ था सब स्टेटमेंट में, ठीक है? ट्रेनिंग किशन टू रिप्लेस राम इन अ फ्यू मंथ्स इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज एक चीज बहुत क्लियर कट बोला हुआ था। क्या बोला था? किशन डज नॉट वॉन्ट, ये लिखा था ना, Mohan knew that replacing Ram with Kishan was difficult as Kishan did not want to leave Delhi। तो किशन को दिल्ली भेजने का कोई फायदा है नहीं, वो जाए मतलब किशन को पानीपत के लिए ट्रेन करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि इज नॉट लाइक लुकिंग टू लीव दिल्ली। सो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड, नॉट वरिंग अबाउट इंग्रेडिएंट्स एज लॉन्ग एज द बिजनेस ग्रोस, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्या है, ये बोल रहा है कि नॉट वरिंग अबाउट इंग्रेडिएंट्स एज लॉन्ग एज, जब तक बिजनेस आपका चल रहा है तब तक इंग्रेडिएंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये गलत है, बिकॉज वही आपका फोर्थ वाले बिजनेसमैन का पॉइंट था कि फिलहाल तो बिजनेस ग्रो कर रहा है, एवरीवन इज हैप्पी विद राम, और फर्स्ट वाला बोलता है कि भाई दोनों के कस्टमर्स डिफरेंट है, बट फिफ्थ जो फोर्थ वाला बोलता है उसको भी हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। उसने क्या बोला था? देयर कैन बी अ डे व्हेन पानीपत कस्टमर्स से नहीं जो सीपी पे मोहन है ना, वो जो देता है वही अपने को भी यहाँ पे चाहिए। तो दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट गोइंग टू बी माई लाइक करेक्ट एक्शन विच इज going to benefit the business in the long term, right? Yeah, it's good for the business. So second wala part is not the right answer. Then third, bringing Ram to CP branch। अब ये मेरा कोई resolution नहीं है, मैं राम को CP लेके आ जाऊँ, but what about पानीपत? बिल्कुल अधूरा सा है, राम को यहाँ लाने का कोई फायदा नहीं है, मुझे पानीपत को भी तो हैंडल करना है। सो थर्ड तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा, इजी टू एलिमिनेट है वाला। Naming the Panipat branch as Ram's and changing it back to Mohan when needed। अच्छा, इस स्टेटमेंट को अभी हम एक सेकेंड के लिए होल्ड पे रख के, बिकॉज इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा है अभी, ठीक है? अभी आपको पहले समझना पड़ेगा स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। मैं फिफ्थ वाला अगर स्टेटमेंट एक बार को पढ़ूँ, जैसे अगर आपको फोर्थ वाला देखो सॉल्व करने के बताता हूँ आपको। फोर्थ वाला स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखो तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट अभी मे भी आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ये नाम वाम चेंज करने से क्या होता है, ठीक? मे बी अगर आप इसको एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि इसमें कुछ गलत भी नहीं हुआ ना, मतलब न्यूट्रल से आपको साउंड क्या होगा अभी फिलहाल के लिए अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। बट लेट्स से अगर आप इससे आगे बढ़ जाते एलिमिनेट करते करते, अगर आप फिफ्थ पे पहुंचते आस्किंग किशन टू रन द पानीपत ब्रांच, तो ये वैसे भी आप क्या करने वाले हो? एलिमिनेट करने वाले हो, बिकॉज किशन जाएगा ही नहीं आपका पानीपत, ये तो हमने बोल चुका है ना। तो फर्स्ट और फिफ्थ आपका डायरेक्टली एलिमिनेटेड था, किशन बिकॉज जाएगा नहीं। सेकेंड वाला नॉट वरिंग अबाउट इंग्रेडिएंट्स एज लॉन्ग एज द बिजनेस ग्रोस, इसको ना मे भी आप रख सकते थे, बट ये आपका बिजनेस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा नहीं, क्योंकि कभी ना कभी जाके फोर्थ वाले स्टेटमेंट से आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है? एंड थर्ड वाला स्टेटमेंट वैसे भी एलिमिनेट करेंगे, ब्रिंगिंग राम टू सीपी ब्रांच, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये जो आपकी प्रॉब्लम है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हमें इन चारों को केटर करते हुए सोचना था। ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट देखो बच भी रहा है, एंड दिस विल मेक परफेक्ट सेंस, लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाई। देखो होता क्या है ना, मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बोल रहा था, यहाँ पे जब मैंने आपको ब्रांड वाला पार्ट बताया, मोहन्स इन सीपी इन दिल्ली इज फेमस फॉर व्हाट? यूजिंग प्रीमियम क्वालिटी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, एक तरीके से उनकी ये स्पेशलिटी बन गई है। तो जब भी हम मोहन्स नाम सुनते हैं
तो व्हाट वी एक्सपेक्ट एज कस्टमर इज वहां पे ये चीज तो मिलेगी ही मिलेगी, राइट। अब वहां पे जो आपको प्रॉब्लम थी ना, राम को मोहन को राम के जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा था उसमें प्रॉब्लम वही है कि वो अभी क्या कर रहा है, मोहन्स के नाम से ही ऑपरेट कर रहे हैं दोनों जगह। अब मोहन्स यहाँ पे दिल्ली में क्या करते हैं, वो प्रीमियम क्वालिटी यूज करते हैं, तो उसको वहां पे गलत लग रहा है बिकॉज वहां पे मोहन्स ही है और वहां पे वो यूज नहीं कर रहा। यहाँ पे जाके ना कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है बिकॉज ब्रांड उसी तरीके से ऑपरेट करना चाहेगा एज अ स्टैंडर्ड हर जगह पे, ठीक है, वही स्टैंडर्ड हर कोई एक्सपेक्ट करेगा। तो वहां पे अगर एक किसी दिन अचानक से, फॉर एग्जांपल ये जो बिजनेसमैन फोर्थ ने बोला था, व्हाट इफ द टुमारो द कस्टमर्स ऑफ पानीपत माइट आल्सो अप्रिशिएट व्हाट सीपी प्लेस कस्टमर्स अप्रिशिएट टुडे बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड, कि भाई वहां पे मोहन ये प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे मोहन ये चीज प्रोवाइड नहीं करता, इसीलिए प्रॉब्लम आएगी। एंड ये वाला जो पर्टिकुलर फोर्थ स्टेटमेंट है, दिस विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। कि अगर देखो बिजनेस तो ऑलरेडी अच्छा चल ही रहा है, ये सारे पॉइंटर्स तो आपके राम के फेवर में है ही ना, कि दोनों जगह के कस्टमर्स डिफरेंट है, पहला पॉइंट, कि राम के बिहेवियर से सब हैप्पी भी हैं, पानीपत ब्रांच डज नॉट यूज द सेम क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स बट मेंटेन्स गुड हाइजीन एंड टेस्ट, ये सब कुछ बिल्कुल फेवर में है। तो बिजनेस में करेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अगर मेरे को मेन प्रॉब्लम कब आ रही है, जब लोग ये एक्सपेक्ट करने लगे कि मोहन वहां पे ये दे रहा है तो मोहन यहाँ पे ये क्यों नहीं दे रहा। ये प्रॉब्लम मैं इस फोर्थ वाले स्टेटमेंट से रिजॉल्व कर सकता हूँ, नेमिंग द पानीपत ब्रांच एज राम्स। तो मैं उस ब्रांच का नाम मोहन से हटा के राम्स कर देता हूँ बिकॉज राम से हर कोई खुश है और जैसे ऑपरेट कर रहा है उसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, पीपल आर हैप्पी, द कस्टमर्स आर वेरी डिफरेंट, ये सब कुछ बोल रहा है ना। एंड चेंजिंग इट बैक टू मोहन व्हेन नीडेड, अगर मेरे को बाद में फ्यूचर में जाके मोहन नाम रखने की जरूरत पड़ेगी, आई विल चेंज इट बैक व्हेन नीडेड। Currently, I can simply resolve this issue by changing the name of the Panipat branch as Rams. Because फिर दोनों अलग अलग होगा, मोहन्स का जो पैरामीटर है फिर वो राम पे एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। तो कस्टमर को उसकी आदत होगी, वो फिर मोहन के पैरामीटर से, मोहन के ब्रांड वैल्यू से फिर उसको जज नहीं कर रहे होंगे, राइट। सो द फोर्थ ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अगेन सेकंड वाला पॉइंट ना, आई वुड से इट कम्स क्लोज, बाकी सारे ऑप्शन दे डोंट इवन कम क्लोज। सेकंड वाला मैंने एलिमिनेट कर दिया है, मे बी अ फ्यू ऑफ यू गॉट कंफ्यूज इन दिस, बट सेकंड वाले में प्रॉब्लम ये थी ना कि अगर आप कंपेयर करो सेकंड एंड फोर्थ को, ये सेकंड वाला प्रॉब्लमैटिक है बिकॉज ऑफ दिस, नॉट वरिंग अबाउट इंग्रेडिएंट्स एज लॉन्ग एज द बिजनेस ग्रोस। तो ये प्रॉब्लम है, मे बी ये बिजनेस के लिए बेस्ट सिनेरियो नहीं हुआ बिकॉज समडे जब ये फटेगा, फॉर एग्जांपल पीपल स्टार्ट रियलाइज, अरे मोहन में ये क्यों नहीं मिल रहा वहाँ पे, तो अचानक से ब्रांड वैल्यू आपकी गिर सकती है, अचानक से गिर सकती है, यू विल नॉट बी एबल टू लिटरली कंट्रोल दैट, एंड हेंस आई हैव चूजन द फोर्थ एज द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर and let's move to the final question in this particular set, also in this particular video also. So the initial part remains same. Let's do this last problem. After discussing with a few customers, Mohan realized that compromising on the quality of ingredients at Panipat branch may not be a good idea, but at the same time he also realized that Panipat branch had grown fast. He was contemplating the following 5 actions. अब ये वाले में आपको देखो दोनों चीज़ें, उसको ये रियलाइज हो चुका है कि कॉम्प्रोमाइज करना है अगर आपको क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट से, सो ये एक अच्छा आइडिया नहीं होने वाला है। बट देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ही इज ऑल्सो सेइंग, ही इज ऑल्सो रियलाइजिंग दैट द पानीपत ब्रांच हैज ग्रोन फास्ट। तो ग्रोथ है आपका पानीपत ब्रांच में, बट हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। नाउ ही इज कंटेम्पलेटिंग द फॉलोइंग 5 एक्शंस, अगेन विल गो बाय ऑप्शन एलिमिनेटिंग, राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड बी बेस्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के फ्यूचर के लिए में इवेलुएट करना है। तो मेजर स्टेक होल्डर अगेन इज मोहन एंड दिस बिजनेस। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट ऑप्शन, क्रिएटिंग अवेयरनेस कैंपेन फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स इन पानीपत। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, वी आर गोइंग टू क्रिएट अवेयरनेस कैंपेन फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स इन पानीपत। नाउ क्या सिचुएशन है, पानीपत में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यूज नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में हम बोल रहे हैं कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अवेयरनेस कैंपेन्स। अवेयरनेस कैंपेन मतलब लोगों को हम जागरूक बनाएंगे, विल टेल पीपल सी दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, राइट। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, मोहन्स इज नॉट यूजिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स इन पानीपत ब्रांच। आप अवेयर कर रहे हो लोगों को, देखो इसका फायदा है, लाइक ऑर्गेनिक वेजिटेबल यूज करो, दिस विल क्रिएट अ नेगेटिव इंपैक्ट फॉर योर बिजनेस, कि आप वो चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप बोल रहे हो कि नहीं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होना चाहिए, उसके फायदे हैं,
तो ये ना फिर आपका कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा, ये बिजनेस के इमेज को लाइक टार्निश कर सकता है, ये खराब कर सकता है तुरंत से, जल्दी से, बहुत तेजी से खराब कर सकता है, बिकॉज दिस इज against what you are actually providing. So the first option is not going to be the like best for the future of this business. So I'll eliminate this. Right. The second statement, Mohan himself should look after the Panipat branch. अब मोहन ही क्या करना स्टार्ट करे, पानीपत ब्रांच को ओवरसी करना स्टार्ट करे. अब मोहन अगर पानीपत ब्रांच को ओवरसी करना स्टार्ट करेगा, राइट, तो हिल टेक केयर ऑफ दिस व्हाट, क्वालिटी वाला पार्ट वो मेंटेन कर ले जाएगा, एंड पानीपत ब्रांच ग्रो तो करा ही है, तो वो रख सकते हैं. नाउ आई डोंट सी एनी रीजन टू एलिमिनेट दिस ऑप्शन. दिस लुक्स लाइक गुड ऑप्शन मे बी, या सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी फिलहाल, अगर नहीं भी बोलता हूँ, आई विल नॉट एलिमिनेट दिस, बिकॉज ये जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है ना, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, इसके साथ मेरे को नोटिस करना है. नाउ एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, इसमें ना बायस कैसे क्रिएट हो सकता है. आप इस वाले क्वेश्चन को करके आगे बढ़े होगे, फॉर एग्जाम्पल पेपर में तो ऐसे ही आएगा. अब इस क्वेश्चन में ना ये सब बड़ी अच्छी बातें लिखी थी राम के बारे में, कि पानीपत ब्रांच में कस्टमर्स क्या है, राम के बिहेवियर से दे आर वेरी हैप्पी, कस्टमर्स ऑफ सीपी एंड पानीपत आर वेरी डिफरेंट, इवन दो दे डोंट यूज क्वालिटी वेजिटेबल्स बट दे मेंटेन गुड. ये सब ना राम के फेवर में काफी आर्ग्यूमेंट्स हैं. अब इस क्वेश्चन को करते टाइम पे ना हमें लगता है कि भाई मोहन हिमसेल्फ शुड लुक आफ्टर द पानीपत ब्रांच. एक बायस ऐसा क्रिएट हो सकता है कि मोहन अगर खुद चला गया ना, तो मतलब राम नहीं काम करेगा, बिकॉज राम के लिए तो लोग फेवर में है, उसको अच्छा मानते हैं, तो राम अगर चला जाएगा तो बिजनेस हैम्पर हो जाएगा. ये गलत लाइन ऑफ आपका रीजनिंग है, याद रखना, क्योंकि जो कंडीशंस आपके इससे पहले वाले क्वेश्चन में था उसको हम यूज नहीं करने वाले. मेन स्टेटमेंट आपका सिर्फ ये चल रहा है, इसमें सिर्फ इतना था कि वो यूज नहीं कर रहे हैं, बट बिजनेस आपका ग्रो करा हुआ है. तो दिस स्टेटमेंट कैन बी अ गुड ऑप्शन, प्लीज रिमेंबर दिस. But let's say we'll look at the other options also. Do we find a better option than the second one? The third statement, close down the Panipat branch. Obviously eliminated. Obviously eliminate कर दोगे आप इसको, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. ब्रांच क्यों क्लोज करेंगे, सही तो चल रहा है, ये पार्ट इसीलिए दिया हुआ था. He has also realized that the Panipat branch had grown fast. ये इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर पाओ, बिकॉज वो ब्रांच अच्छा चल रहा है ना, तो आप उसको बंद क्यों करोगे, ये बिजनेस के लिए अच्छा थोड़ी ना है. इंटायरली रॉन्ग. फोर्थ, सेंड किशन टू पानीपत ब्रांच. मेरे को पता है किशन जाने नहीं वाला है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, गया. हायर अ न्यू पर्सन टू रन द पानीपत ब्रांच. अब देखो यहाँ पे ना, अब आप समझ जाओगे कि सेकंड और फिफ्थ में क्या ज्यादा बेटर है. सेकंड क्या बोलता है, मोहन हिमसेल्फ शुड लुक आफ्टर द पानीपत ब्रांच. फिफ्थ स्टेटमेंट बोलता है हायर अ न्यू पर्सन टू रन द पानीपत ब्रांच. अब आप सोच के देखो, यही दोनों ऑप्शन बचे हैं. इट बिकम्स वेरी इजी टू सेलेक्ट द सेकंड ऑप्शन नाउ, बिकॉज एज कंपेयर टू द फिफ्थ इट इज ऑब्वियसली बेटर कि वो खुद चला जाए, बिकॉज फिर वो जो चाहता है, he doesn't want to compromise on the quality of ingredients, right? So he'll be able to control that as compared to a new person. अब न्यू पर्सन आएगा, वो करेगा नहीं करेगा मेरे को नहीं पता, राइट? इसलिए आउट ऑफ दिस सेकेंड एंड फिफ्थ ऑप्शन आई डेफिनेटली एलिमिनेट दिस एंड से दिस इज द राइट आंसर. Right, I hope you understood this particular problem. I hope you understood both the sets in entirety. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.